नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आप सभी का स्वागत करता है। आज कथा कथन भाग 2 में आज आप देखेंगे भारतीय लेखकों की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे रख लीजिए और फ्लैश फोटोग्राफी की मनाही है। धन्यवाद। तो पेश है कथा कथन भाग 2। வருஷங்களுக்கு அப்புறம் கைலாசம் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு வருகின்றான். அவன் தன்னுடைய சொந்த ஊரில் தெற்கு பக்கத்தில் உள்ள காவிரி ஆற்றங்கரையில் அமர்ந்திருந்து 12 வருடங்களுக்கு முன்னர் அவனுடைய வாழ்வில் ஏற்பட்ட மறக்க முடியாத நினைவுகளை மீட்டு பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றான். அப்பொழுது நான் 20 வயது வாலிபன். எனக்கு என்னுடைய மாமனார் ஒரு பெண் பார்த்த, அவளுடைய பெயர் உமா. எனக்கும் அவளை பிடித்திருந்தது. திருமணத்திற்கும் நிச்சயித்து விட்டார்கள். நாளை திருமணம். நானும் என்னுடைய உறவினர்களும் என்னுடைய நண்பர்களும் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாகி பெண்ணுடைய வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தோம். அப்பப்பப்பா, என்னத்த சொல்றது, அப்படி ஒரு வரவேற்பை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில பார்த்ததே இல்லை. மேளம் என்ன, தாளம் என்ன, பழம் என்ன, பால் என்ன, அப்படி ஒரு வரவேற்பு. நானும் எனக்கும் சந்தோஷமா இருந்தது. என்னுடைய திருமணம் தானே என்று எனக்கும் சந்தோஷமா இருந்தது. ஊர்வலமும் முடிந்தது. நான் பெண்ணுடைய வீட்டிற்கு சென்று என்னுடைய ஆடைகளை மாத்தலாம் என்று சென்றேன். அப்பொழுது ஒரு பெண் என்னுடைய அறைக்குள் வந்தாள். வந்து, மாப்பிள்ள, உங்களுக்கு உமா ஒரு லெட்டர் ரகசியமா தந்து விட்டவள் சொல்லி என்னிடம் ஒரு லெட்டர் ஒன்றை கொண்டு வந்தாள். அதில் இவ்வாறு எழுதியிருந்தது: எனக்கு இந்த திருமணத்தில் இஷ்டமில்லை. என்னுடைய மனம் இன்னொருவர் மேல் சென்று விட்டது. காதல் இல்லாத கல்யாணத்தில் என்ன பெயர்? கைலாசத்துக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை. மறுநாள் கல்யாணம். பொம்பளையிடமிருந்து ஒரு லெட்டர். கைலாசத்துக்கு கையெல்லாம் மசுக்கு தெறிக்குது, முகமெல்லாம் அடிச்சு வேர்க்குது. கைலாசம் அந்த லெட்டரை பார்த்துவிட்டு என்ன செய்வது அவனுக்கு தெரியவில்லை. விறுவிறன்று நடந்து அவனுடைய மாமனாரிடம் செல்கின்றான். சென்று, மாமா, நான் பெம்பளையினுடைய தகப்பனாரிடம் ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டும். அதற்கு பிறகுதான் இந்த திருமணத்திற்கு சம்மதிப்பேன் என்று. மாமனாரையும் கூட்டிக் கொண்டு அவன் பெண்ணினுடைய தகப்பனாரிடம் செல்கின்றான். சென்று, ஐயா, நான் பெண்ணிடம் ஒரு வார்த்தை தனிமையில் பேச வேண்டும். அதற்கு பிறகுதான் இந்த திருமணத்துக்கு சம்மதிப்பேன் என்று. அதற்கு அவர், தம்பி, நாளைக்கு திருமணம். நீ இந்த வேலையை முதலே செய்திருக்கணும். இப்ப வந்து புள்ளிய பார்க்க போறேன்டா, இது சம்பிரதாய குற்றம். இருந்தாலும் நான் ஒழுங்கு செய்கிறேன் அப்படி என்று சொல்லி அவர் சொன்னார். நானும் என்னுடைய அறைக்குள் சென்று விட்டேன். அப்பொழுது உமா வந்தாள். எனக்கு அப்படி அவளை விழுங்கோணம் போல இருந்தது. அப்போ நான் கேட்டேன், இந்த லெட்டர் எழுதினது நீதானும்? அதற்கு அவள், ஆமா, ரொம்ப சந்தோஷம். நீ உனக்கு பிடித்தவனையே திருமணம் செய்து கொள். உங்கள் இருவருக்குள்ளும் நான் வர மாட்டேன் என்று கைலாசம் சொல்லிவிட்டு அவன் விறுவிறது நடந்து தகப்பனாரிடம் சொல்கின்றான். ஐயா, எனக்கு இந்த திருமணத்தில் விருப்பமில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அவன் திருமண வீட்டை விட்டு வெளியேறுகின்றான். அப்பொழுது அவனை எல்லோரும் சமாதானம் செய்வதற்காக வருகின்றார்கள். அப்பொழுது அவன் சொல்கின்றான், விருப்பமில்லை என்றால் விட்டு விடுங்கள், அவ்வளவுதான் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் அப்படியே அந்த ஊரை விட்டு இரவோடு இரவாக சென்று விடுகின்றான். சென்று அங்கே வேறொரு இடத்தில் அவன் 12 வருடங்களாக வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான். எப்படி இருந்தாலும் அந்த 12 வருடத்துக்கு முதல் அவனுக்கு ஏற்பட்ட அந்த திருமணத்துக்கு முதல் நாள் ஏற்பட்ட அந்த வலியை அவனால் மறக்க முடியவில்லை. 12 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் அதே இடத்துக்கு வருகின்றான். 6 மாத லீவ் எடுத்துக்கொண்டு அதே இடத்துக்கு வருகின்றான். வந்து அவனுக்கு பெருமாள் புது ஊருக்கு மீண்டும் போக வேண்டும் என்று ஆசை. ஆனால் எப்படியும் போனால் உமாவை மீண்டும் சந்தித்து விடுவனும். எப்படியும் அவளுக்கு 3-4 பிள்ளைகள் இருக்கும். அவள் வேறொருத்தரையும் திருமணம் செய்திருப்பாள். நினைக்கவே அருவருப்பா இருந்தது என்று சொல்லி யோசித்து விட்டு அவன் இருக்கின்றான். அப்பொழுது அவனுடைய தலையிலும் கழுத்திலும் ஒரு அடி விழுகிறது. அப்படியே கைலாசம் ஒரு நிமிடம்
அப்பொழுது அவனுடைய கழுத்தை நெறிக்கொண்டு மெரியாதையா உன்னுடைய ஆடையை கலற்றி கொடுத்து விடு, இல்லை என்றால் கழுத்தை நெருகி காவிரி ஆற்றில் போட்டு விடுவேன் அப்படி என்று சொல்கிறான். கைலாசத்திற்கு எதுவுமே புரியவில்லை. கைலாசம் அவனை வடிவாக பார்க்கின்றான். அதன் பின்னர் 2 போலீஸ்காரர் வருகிறார்கள், அவனை அரஸ்ட் செய்கிறார்கள். அப்பொழுது அவன் உடனே ஐயா ஐயா உங்களால் எனக்கு ஒரு காரியமாக வேண்டும் ஐயா. கைலாசம் அவனை பார்க்கின்றான், அடிக்கிறான், இந்த கழுத்தை பிடிச்சு நெரிக்கிறான், இப்படி கேட்கிறான் சொல்லி கைலாசம் பார்க்கின்றான். அப்பொழுது கைலாசம், என்னால் உனக்கு என்ன காரியமாக வேண்டும்? ஐயா என்னுடைய பெயர் நரதமுத்து, நான் பெருமாள் திருவுரையில் தான் ஐயா இருக்குது. என்னுடைய மனைவி 3 பிள்ளைகளோடு அவள் இறந்து விட்டாள் ஐயா. எனக்கு 3 பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். அவள் சத்தியம் செய்து விட்டு சென்றாள், என்னுடைய பிள்ளைகளை கவனமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் சத்தியம் செய்து விட்டு சென்று விட்டாள் ஐயா. போன வருஷம் தீபாவளி எல்லாரும் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினார்கள் ஐயா. எல்லா பிள்ளைகளும் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினார்கள். என்னுடைய பிள்ளைகள் மட்டும் எதுவுமே வெடிக்கவும் இல்லை. அவர்கள் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் ஐயா. அப்ப நான் சத்தியம் செய்து கொடுத்தேன் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு, அப்பா அடுத்த முறை தீபாவளிக்கு உங்களை இப்படி விட மாட்டேன் என்று சொல்லி நான் சத்தியம் செய்து கொடுத்தேன் ஐயா. நாளைக்கு தீபாவளி, என்னுடைய பிள்ளைகள் அப்பா காலி கொண்டிருப்பார்கள் ஐயா. எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் ஐயா. அப்படி என்று அவன் அழுதான். கைலாசத்திற்கு எதுவுமே விளங்கவில்லை. சரி, நான் உனக்கு என்ன உதவி செய்ய வேண்டும், என்னால் முடிந்ததை நான் செய்கிறேன் என்று கைலாசத்தினுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வந்தது. அதற்கு அவன், ஐயா பெரிய உதவி எல்லாம் இல்லை, என்னிடம் 3 ரூபாய் காசுகள் இருக்குது, நீங்கள் அதற்கு பட்டாசுகள் மட்டும் வேண்டிக் கொண்டே கொடுங்கள், அவர்களிடம் சொல்லுங்கள் அப்பா அப்பா வாங்கி தந்ததாக சொல்லுங்கள், இன்னும் 2 மாதத்தில் அப்பா வந்து விடுவேன் என்று சொல்லிவிடுங்கள் ஐயா என்று சொல்லிவிட்டு அந்த காசுகளை கொடுக்கின்றான். அவனும் அந்த காசுகளை வாங்குகின்றான். வாங்கிவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு செல்கின்றான். போலீசார் அரெஸ்ட் பண்ணிக்கொண்டு அவர்களை மருதமுத்துவை கொண்டு போகிறார்கள். அவன் சென்று அங்கு அந்த 3 ரூபாய்களுக்கு பட்டாசுகள் வாங்குகின்றான். பட்டாசுகள் வாங்கி கொண்டு மருதமுத்துவனுடைய வீட்டுக்கு தேடி செல்கின்றான். அங்கு சென்றால் அவனுக்கு இன்னொரு ஆச்சரியம். அங்கு சென்றால் 12 வருஷங்களுக்கு முதல் அவன் எந்த ஒரு ஆளை பார்க்க கூடாது என்று யோசித்தானோ அதே ஒரு ஆளை அவன் பார்க்க அங்க நேரிடுறது. அப்பொழுது அவன் பார்க்கிறான், ஒரு பொம்புல, அவனுடைய பின்செட் மட்டும்தான் தெரிகிறது, அதை சுத்தி 3 பிள்ளைகள். அவன் அந்த உருவத்தை நான் 12 வருடங்களுக்கு முதல் எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேனே, உமாவோ இல்லை இல்லை உமாட்ட தங்கச்சியாரோ உமாவேதான் அப்படி என்று அவன் ஆச்சரியமா பார்க்கிறான். உமாவும் திரும்புகின்றாள். இருவரும் ஒருத்தர் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள். அப்பொழுது அவன் தான் வாங்கி வந்த பட்டாசுகளை அந்த பிள்ளைகளிடம் கொடுக்கின்றான். பிள்ளையிடம் கொடுக்கிறார்கள், அங்கு இந்த பட்டாசு அப்பாவை வாங்கி கொடுத்தது அப்படி என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள். அதற்கு ஆமாம், உங்களோட அப்பா தான் இந்த பட்டாசுகளை வாங்கி தந்தார். அங்கு அப்பா அப்பா எப்ப அங்கு வருவ? அப்ப அவர் சொல்றார், இன்னும் 2 மாதங்களில் உங்களோட அப்பா வந்து விடு. ஐயே நாங்க அப்ப விளையாடலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பிள்ளைகள் சென்று விட்டார்கள். அப்பொழுது கைலாசம் தானும் போவதற்கு ஆரம்பமாகி கொண்டிருக்கிறான். அப்பொழுது அந்த உமா வருகின்றால் வந்து, நான் உங்களிடம் ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டும். அதற்கு அவன், என்னிடம் பேசுவதற்குத்தான் உனக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்கின்றான். அப்பொழுது அவள், இல்லை, நான் உங்களிடம் ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டும். நீங்கள் என்னுடன் எனது வீட்டிற்கு வந்தால் நான் உங்களுக்கு எல்லா விவரத்தையும் முழுமையாக சொல்வேன். பின்னர் இருவருமாக உமாவுடைய வீட்டுக்கு செல்கின்றார்கள். அங்கு சென்றதும் உமா அவருடைய தாயாருக்கு சொல்கின்றார், கைலாசம் வந்திருக்கிறார் என்று. அப்போ தாய்க்கு சரியான சந்தோஷம். கைலாசம் தம்பி, பகவான் கைவிடல, எந்த பிள்ளைன்னு தவிர்த்த பகவான் கைவிடல அப்படி என்று சொல்லி தாய் ஆனந்த கண்ணீர் அழுகின்றாள். பின்னர் கைலாசம், ஏதோ வீட்டுக்கு வந்தால் ஏதோ சொல்வதாக சொன்னீர்கள், அதை சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் என்று கேட்கின்றான். அதற்கு அவள், ஆமாம் நான் சொல்கிறேன்,
துப்பாக்கிசாலியான ஒரு பொம்பளை இருந்தால் அவளுக்கு அவளுடைய பெற்றோர் ஒரு வரனை பார்த்தார்கள். அவளுக்கு அந்த வரனை பிடித்திருந்தது. மறுநாள் திருமணம். அவள் தன்னுடைய வருங்கால கணவருக்கு ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுதுகின்றார். அந்த லெட்டரை எழுதி தன்னுடைய தோழியிடம் கொடுக்கின்றார். அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே செய்த ஒற்றிய ஒரு பிழை அந்த லெட்டரை அந்த தோழியிடம் கொடுத்ததுதான். அந்த லெட்டரை பார்த்துவிட்டு கல்யாணம் வேணாம்னு சொல்லி மாப்பிள்ளை சென்று விட்டார். அந்த அப்பாவி பெண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அவள் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்தாள். ஒரு மாதம் இல்லை, ஒரு வருஷம் இல்லை, 2 வருஷம் இல்ல, 3 வருஷம் இல்ல, அவர் 12 வருஷம் அவருடைய வருகைக்காக அவள் காத்திருந்தாள். அப்படி என்று அவள் சொன்னாள். கைலாசத்திற்கு எதுவுமே விளங்கவில்லை. அப்படி என்றால் அந்த கடிதத்தில் அந்த லெட்டரில் எழுதியிருந்தது என்ன? அந்த லெட்டரே என்னிடம்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவள் ஒரு லெட்டரை அவனிடம் கொடுத்தாள். அதில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருந்தது: என் உயிருக்கு உயிரான பிராணநாதருக்கு நான் இதை எழுதுவது தவறாக இருந்தால் என்னை மன்னிக்கும்படி பிரார்த்திக்கிறேன். தாங்கள் கல்யாணத்திற்கு கதர் வெட்டிதான் வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படியே வாங்கி இருப்பதாக தெரிகிறது. இதை பற்றி என் தோழிகள் எல்லாம் என்னை பரிகாசம் செய்கிறார்கள். கோணி சாக்கு மாப்பிள்ளை என்று. ஆகையால் என் மேல் கருணை கொண்டு பட்டு வேஷ்டி பாண்டி கட்டிக்கொள்ளும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படிக்கு அடியாள் உமா. அப்போ நான் வாசித்த கடிதம், நீங்கள் வாசித்த கடிதம் என்னுடைய தோழி எழுதிய லெட்டர். அவள் ஒரு நாவலில் இருந்து அந்த வசனத்தை பார்த்துவிட்டு அதை எழுதி உங்களிடம் தந்து விட்டாள். நீங்களும் கல்யாண நாளன்று அந்த லெட்டரை காட்டி கேட்டீர்கள், இது நீ எழுதினதென்று. அதில் என்னுடைய எழுத்து இருந்தபடியா நானும் ஓம் என்று சொல்லிவிட்டேன். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் கல்யாணமே வேண்டாம் என்று சொல்லி சென்று விட்டீர்கள். பிறகுதான் நான் அந்த லெட்டரை பார்க்கிறேன், அதில் இவ்வாறு எழுதி இருந்தது. எனக்கே அது ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதுக்கு பிறகு நான் பட்ட வேதனைகள் என்னால் சொல்லவே முடியாது. நான் உங்களை எந்த வேஷ்டி கட்ட வேண்டாம் என்று சொன்னனோ அதே வேஷ்டியை நான் 12 வருடங்களாக ஏழை பிள்ளைகளுக்கு இனாம் செய்து வருகின்றேன். அதே போன்றுதான் மருதமுத்து ஜெயில் சென்று விட்டான். அவனுடைய பிள்ளைகள் அனாதைகளாக இருக்குது என்று சொல்லி அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் ஆடை துணிகள் கொண்டு சென்றேன். அப்பொழுதுதான் நான் உங்களை பார்த்தேன். ஆனால் மருதமுத்து 7 ஜென்மத்துக்கும் மகாராசனா இருப்பான். அதற்கு கைலாசம் மருதமுத்து உண்மையிலேயே மகாராசனா இருப்பான். அவனை நான் பார்க்காவிட்டால் இன்று நான் உன்னை பார்த்திருக்க மாட்டேன் அப்படி என்று சொன்னான். எந்த வீட்டில் 12 வருடங்களாக தீபாவளி கொண்டாடவில்லையோ அதே 12 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் தீபாவளி உற்சவம் தடபுடலாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த காதல்கள் இருவரும் தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் அவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக அந்த தீபாவளியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். उसका मुंह देखता हूं तो होठ ज्यादा फटे हुए हैं, दांत बाहर निकलने को हमेशा तत्पर रहते हैं। अरे झूठे और बक्की आदमी का मुंह ऐसा हो जाता है। झूठे 2 तरह के होते हैं, चुप्पा और भड़बड़िया। चुप्पा परिपक्व झूठा होता है, वो 1-2 वाक्यों में ही झूठ जमा देता है। पर भड़बड़िया सोचता है, अभी झूठ जमा नहीं। इसके समर्थन में वो 8-10 वाक्य भड़बड़ा कर बोल जाता है। इससे जबड़े फैलते जाते हैं। कैसे? इसके जबड़े भी ऐसे ही फैल चुके हैं। इसका मुंह ना पके फोड़े की तरह है, जिसमें झूठ का मवाद भरा है। जरा छूने से मवाद बह निकलेगा। ये खासकर गला साफ करता है, रुमाल मुंह पर रहता है, लगता है गवाही देने नहीं है, न्याय की बेटी को ब्याहने दूल्हा बनकर आया है। सरकारी वकील उसे सादे सदाए सवाल पूछता है और वो सादे सदाए जवाब देता है। उसने अमुक आदमी को, मृतक को लाठी मारते देखा था, उसे लाठी दिखाई गई।
जिसे उसने किसी पुराने दोस्त की तरह पहचान लिया। उसे फिर पत्थर का एक टुकड़ा भी दिखाया गया। उसने उसको भी पहचान लिया, यह वही टुकड़ा है जो वहां पड़ा था। मैंने बगल में खड़े वकील दोस्त से पूछा कि यार, ये तो अंधेर है, ये किसी पत्थर के टुकड़े को कैसे पहचान लेगा? उसने कहा, एविडेंस एक्ट के मुताबिक ठीक है। गवाह को खून लगी मिट्टी दिखाई गई, उसने मिट्टी को भी पहचान लिया। मैंने फिर वकील दोस्त से कहा, यार ये तो बड़ा अचरज है, इसने मिट्टी को भी पहचान लिया। उसने कहा, चुप, एविडेंस एक्ट। फिर मैंने सोचा कि अब वकील इसे शीशी में बंद एक मक्खी दिखाए और पूछेगा, क्या तुम इस मक्खी को जानते हो? गवाह कहेगा, हाँ, ये वही मक्खी है जो वहां मारपीट के वक्त भनभना रही थी। मैंने इसे पहचान लिया, इसकी शक्ल मेरी मां से मिलती है। एविडेंस है, इसका कमाल है। हरिश्चंद्र ने जिस ब्राह्मण को सपने में दान दिया था, अगर उसे जायदाद पर कब्जे के लिए अदालत जाना पड़ता तो वो भी शायद 2-4 चश्मदीद गवाह खड़े कर देता। वो कहते, हमारे सामने इस विप्र को राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था। फिर वकील साहब पूछते, उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? वो कहते, हम लोग भी राजा साहब के सपने में ही थे। इतने में बचाव पक्ष का वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खड़ा हुआ। ये खतरनाक चीज है, एक बार मेरे भी पलस्तर उखड़ चुके थे, मैं सच बोल रहा था, पर वकील ने 2 मिनट में ही मेरे सत्य को पसीना ला दिया था। ये सपना है, दुनिया की किसी विधानसभा की तस्वीर इसमें नहीं दिखाई गई है। सपने का फल क्या है, यह अलबत्ता राजनीतिक ज्योतिषियों के लिए विचारणीय है। जरा देर पहले ही आंख लगी थी, क्या देखता हूं कि मैं विधानसभा भवन में खड़ा हूं। मेरे बाईं तरफ एक बड़ा हॉल था, मैं उसमें घुस गया। हॉल के आधे हिस्से में सोफे बिछे थे और आधे हिस्से में तख्त बिछे थे, जिन पर मोटे गद्दे और गोल तकिए पड़े थे। सोफों पर पैर फैलाकर कई आदमी पसरे हुए थे, तख्तों पर कई आदमी सो रहे थे। मैंने एक कर्मचारी से पूछा, क्या यही विधानसभा है? उसने कहा, विधानसभा तो पूरी इमारत में फैली है। मैंने कहा, मेरा मतलब है, क्या विधानसभा की बैठक यहीं हो रही है? उसने कहा, बैठक तो भीतर सभा भवन में हो रही है, ये तो विश्राम कक्ष है, यहाँ बैठक नहीं लेटक होती है। खाली तख्त देखकर मुझे आलस्य सताने लगा। मैं उस पर लेटने ही जा रहा था कि उस कर्मचारी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, ठहरो ठहरो, क्या करते हो? मैंने कहा, सोना चाहता हूं। उसने कहा, तुम यहाँ नहीं सो सकते, यहाँ वही सो सकता है जिन्हें यहाँ से तनख्वाह मिलती है। ये नियम है, और ये नियम पूरे देश में लागू है कि जिन्हें जहां से तनख्वाह मिलती है वो वही सो सकते हैं। ये विधायक लोग भी तभी सो सकते हैं जब भीतर सभा चल रही हो। रात को ये भी सोना चाहे तो इन्हें इजाजत नहीं है। वो एक नोटबुक में विधायकों के नाम और सोने का समय लिखने लगा। मैंने पूछा, ये क्यों लिख रहे हो? उसने कहा, हिसाब रखना पड़ता है कि कौन विधायक कितना सो रहा है। जैसे भीतर सभा भवन में विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष में बहस होती है, वैसे ही यहाँ सोने में स्पर्धा होती है। जैसे ही भीतर खबर पहुंचती है कि विरोधी पक्ष के सोने के घंटे बढ़ रहे हैं, त्यों ही सरकारी दल का सचेतक कुछ सदस्यों को यहाँ सोने भेज देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दिन विरोधी पक्ष के सोने के घंटे बढ़ जाएंगे सरकारी पक्ष से, उस दिन सरकार को इस्तीफा देना होगा। मैंने पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि विरोधी पक्ष के सोने के घंटे बढ़ गए हों और सरकार ने इस्तीफा दिया? उसने कहा, नहीं, ऐसा आज तक तो नहीं हुआ, लेकिन कोशिशें जारी हैं। वो क्या है कि सरकारी पक्ष बड़ा चतुर है, वो कुछ ऐसे सदस्यों को ले आया है जिन्हें यहाँ पैर रखते ही नींद आने लगती है। वे दस्तखत करते हैं और सो जाते हैं, तो फिर शाम को ही उठते हैं। ऐसे लोगों पे सरकार टिकी है। उसी समय एक सदस्य भागता हुआ गया, कई सदस्यों को जगा कर बोला, अरे जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, चलो चलो चलो, वॉकआउट करना है, वॉकआउट। वे बेचारे आंख मलते हुए भीतर गए और 5 मिनट बाद फिर वापस आ गए। मैंने उनमें से एक से पूछा, आप अभी गए थे, अभी आ गए? उसने कहा, विरोधियों की यही दिक्कत है, हमें हर 15-20 मिनट में वॉकआउट करना पड़ता है। आंख लगी नहीं कि कोई आता है और वॉकआउट के लिए भीतर ले जाता है, हम उसके पीछे जाते हैं और नेता के पीछे फिर बाहर आ जाते हैं। मैंने कहा, मगर मैं तो देख रहा हूँ यहाँ कई सदस्य बड़ी देर से सो रहे हैं।
उसने समझाया उनका काम अलग है, वे वॉकआउट नहीं करते, स्लीप आउट करते हैं। इसमें विरोधी और सरकारी दोनों पक्षों के लोग हैं। इसी तरह तुम देखोगे कि कुछ लोग कैंटीन में दिन भर बैठे बस खाया करते हैं, वे ईट आउट करते हैं। मैंने पूछा, भाई इन 3 तरह के आउटों में सबसे उपयोगी और प्रभावशाली आउट कौन सा है? उसने कहा, वॉकआउट करना तो साधारण बात है, अरे कोई भी कर लेता है। ईट आउट जरा मुश्किल है, क्योंकि उसमें हर बारी कोई खिलाने वाला ढूंढना पड़ता है। स्लीप आउट सबसे उत्तम है, लेकिन उससे भी बड़ा वो है जो ईट आउट और स्लीप आउट की संयुक्त कार्यवाही करता है। ऐसा सदस्य कैंटीन में खाता है और फौरन सो जाता है, बीच में नींद खुलती है तो फिर उठता है, फिर खाता है और फिर सो जाता है। ऐसा सदस्य जिस दिन चाहेगा उस दिन देश की काया पलट कर देगा। उसने समझाया कि कैसे 20 सदस्य सरकार के समर्थन में सो रहे हैं और 7 उनके विरोध में सो रहे हैं। इसी तरह कुछ सदस्य कैंटीन में दिन भर बैठे बस खा रहे हैं सरकार के समर्थन में, और कुछ सरकार की धांधलियों के विरोध में खा रहे हैं। इतना कहते कहते उस सदस्य की आंखें झपने लगी और वो मेरे सामने स्लीप आउट कर गया। अब मैं भीतर सभा भवन में जाता हूं, वहां एक कुत्ते की मौत पर बड़ी गहरी बहस चल रही है। विरोधी सदस्य कह रहा है बड़ी भावुकता से, अध्यक्ष महोदय, ये कोई साधारण बात नहीं, एक कुत्ते की मौत का मामला है। कुत्ता ये वो पशु है जिसने युधिष्ठिर का साथ उन बर्फीली घाटियों में दिया था जहां उनके सगे भाई और पत्नी तक उन्हें छोड़कर चले गए थे। अरे ऐसी भक्ति तो हम अपने पार्टी और नेता के प्रति भी नहीं रखते हैं। ऐसा ही एक कुत्ता सरकारी बस से कुचलकर मारा गया है। यातायात मंत्री हत्यारा है, उसे इस्तीफा देना होगा। अरे ऐसी सरकार एक दिन भी कुर्सी पर बैठने की हकदार नहीं है। कुछ और सदस्यों ने इस पर सरकार से इस्तीफे की मांग की। सरकारी ने जवाब दिया, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसका सबूत है कि कुत्ता गलत साइड से चल रहा था। कुत्ता सड़क की दाहिनी तरफ से चल रहा था और बस पास आने पर सड़क पार करने लग गया था। सदस्यों ने बोला, झूठ है, सरासर झूठ है, कुत्ता बाईं तरफ से चल रहा था। कुछ और सदस्यों ने बोला, कुत्ता बाईं तरफ से चले ऐसा नियम सरकार ने कहीं नहीं बनाया, इसलिए वो कहीं भी चलने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए उसके लिए दोनों बाजू बराबर है, इसलिए उसका इस दुर्घटना में कोई कसूर नहीं है। इसी समय पीछे से एक सदस्य ने उठकर कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में ओले गिरने की वजह से कई गांव में फसल एकदम चौपट हो गई है। वहां के किसान बर्बाद हो रहे हैं, वे भूखे मर रहे हैं और उनके मवेशी भी भूखे मर रहे हैं। हजारों किसान विधानसभा की फाटक पर अपनी फरियाद लेकर खड़े हैं। इस पर सदन में विचार होना चाहिए। बाहर किसान नारे लगा रहे थे, पर अभी कुत्ते की मौत पर बहस जोर पर थी। आखिरकार मंत्री ने जवाब दिया, अध्यक्ष महोदय, हमने जांच कराई, कुत्ते की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई, बस के पहिए की भी रासायनिक जांच कराई। रासायनिक जांच से यह मालूम हुआ है कि कुत्ते की मौत बस से कुचलकर नहीं हुई। बस के पहिए पर जो खून लगा था उसमें रासायनिक का मत है कि वो खून कुत्ते का नहीं है। अरे तो भाई किसका खून है? खून आदमी का है। इस पर सदन में थोड़ी देर गुनगुनाहट होती रही। विरोधी पक्ष निराश हो गया था। मंत्री ने विजय के स्वर से कहा, तथ्य यही है कि वो खून कुत्ते का है, आदमी का नहीं है। कुत्ते का है कि आदमी का है? आदमी का है, कुत्ते का नहीं, जैसा कि विरोधियों का आरोप है। इसलिए मेरे इस्तीफा देने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। बाहर किसानों के नारे लग रहे थे। एक बारी फिर सदस्य ने उठकर कहा, किसान लगान की माफी मांगते हैं, वे खाने के लिए अन्न मांगते हैं, बोने के लिए बीज मांगते हैं, अपने मवेशियों के लिए भूसा मांगते हैं। सरकार बताए कि वो इन किसानों की समस्या का क्या हल करेगी। मंत्री ने जवाब दिया, ने जांच कराई है, जिससे हमें मालूम हुआ है कि वहां ओले नहीं गिरे हैं। अरे गिरे हैं, गिरे हैं। अगर गिरे भी हैं तो फसल बर्बाद नहीं हुई है। अरे हुई है, हुई है। अगर फसल बर्बाद भी हुई है तो मुझे यह मालूम है वहां किसान नहीं रहते, तो फिर फसल कैसे हो गई? अगर किसान भी वहां रहते हैं, फसल भी वहां हुई है, तो मुझे मालूम है कि वहां बर्बादी नहीं हुई है। मैं जानता हूं इन किसानों को कम्युनिस्टों ने भड़काया है। इस पर सदन में हो हल्ला हो गया। इतनी चिल्लम चिल्ली, इतनी चिल्लम चिल्ली। अध्यक्ष ने कहा कि सदन ये जानना चाहता है
कि इन किसानों की समस्या का हल कैसे होगा। मंत्री ने वक्तव्य दिया, अध्यक्ष महोदय, हमारे पास इस समस्या का यही एकमात्र और अचूक हल है कि जब भी हमारे पास कोई समस्या लेकर आता है, हम उसे कह देते हैं कि तुम्हें कम्युनिस्टों ने भड़काया है, इससे समस्या हल हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस नुस्खे को अपने बच्चे पर भी आजमा कर देख चुका हूँ। कल उसकी माँ बाहर गई हुई थी, वो रोने लगा भूख के मारे। मैंने कहा, क्यों रोता है? लगता है तुझे कम्युनिस्टों ने भड़काया है। अध्यक्ष महोदय, इतना कहते ही बच्चा चुप, दूध पिलाने तक की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब मैं कहता हूं कि इन किसानों को कम्युनिस्टों ने भड़काया है, तो इन्हें समझ लेना चाहिए कि इनकी समस्या हल हो चुकी है। अब मैं बाहर जाता हूं, इसी समय विरोधी पक्ष का एक सदस्य बाहर आता है। उसने बगलबंदी पहनी हुई थी, ऊंची धोती थी, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, पैरों में खड़ाऊ और सर पर काली टोपी थी। मैंने पूछा, महाशय, क्या आपको मालूम है हमारे देश में टेक्सटाइल उद्योग कितना विकास कर गया है? उसने मुझे घूर कर देखा। प्रश्न पूछना और विचार करना हमारे यहाँ अनुशासन के विरुद्ध माना जाता है। मैंने कहा, मैं यही जानना चाहता हूं कि आप ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते। उसने फिर मुझे घूर कर देखा। अच्छे कपड़े पहनना हमारे यहाँ राष्ट्रीय कर्म है, अगली बार तो मैं बलकल पहनकर आऊंगा। मैंने कहा, अच्छा, आपका इस विधानसभा के बारे में क्या मत है? कहने लगा, चुनकर आ गए तो बैठते हैं। अरे प्रजातंत्र वाले स्वयं प्रजातांत्रिक संस्था का उपहास करते हैं, तो मैं क्या करूं? मैं तो देख रहा हूं हमारी संस्कृति में जनता से और जनता को सवाल पूछने की परंपरा ही नहीं है। ये प्रजातंत्र विदेशी विचार है, अपने को नहीं जमता, समझे? मैं समझ गया और डर के मारे मेरी नींद खुल गई। पहले पहल पुष्पा को मैंने घर के सामने पंप पर पानी भरते देखा। उसकी आंखें मुझे पतली कौड़ियों जैसे लगी। उसने 2-3 बार आंख भरकर मुझे देखा तो मुझे लगा मेरे बाल सफेद हो गए हैं या मैं अपनी उम्र से 3-4 साल छोटा लगता हूँ। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि वो सहज विश्वास भरी दृष्टि से मुझे देखती, मानो कह रही हो, चलो हाथ में चोली खेलते। पुष्पा की उम्र 13 साल थी, अधिक से अधिक 14 साल। उसका रंग गोरा पंजाबी। उसके शरीर को खिलने में 2 से 3 साल रहते थे, पर फिर भी उसकी आंखों में वो विस्मय भर गया था जो यौवन का अर्थ पहले पहल समझने में कुछ दिनों के लिए रहता है। उसे जैसे आश्चर्य था कि क्या वो अकेली ही जानती है कि गुलाब का रंग गुलाबी क्यों है। आप पानी भर लीजिए, पुष्पा ने अपनी बाल्टी हटाकर मुझसे कहा। नहीं, तू भर ले। मैंने ये सोचकर कहा कि वो मेरे सफेद बालों का सम्मान कर रही है। आप भर लीजिए, आपको दफ्तर जाना है। उसने मुझसे कहा तो मुझे खुशी हुई कि उसे मेरे अस्तित्व का पता है और मेरे कामकाज का पता है, और उसका लिहाज मेरे सफेद बालों तक सीमित नहीं। तेरा नाम क्या है? मैंने बाल्टी में पानी भरते भरते पूछा। पुष्पा। वो संकोच के साथ बोली। किस क्लास में पढ़ती है? वो थोड़ा और संकुचित हो गई, मेरी ओर बिना देखे बोली, मैं स्कूल नहीं जाती। क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी आंखों वाली लड़की स्कूल क्यों नहीं जाती। ऐसे मैं लड़कियों से ज्यादा सवाल नहीं करता, क्योंकि वो जरा सा परिचय को घनिष्ठता समझने लगती है। मगर पुष्पा अभी उस रेखा से दूर थी जहां जाकर एक लड़की मेरे लिए लड़की बन जाती। मैं यहाँ नहीं रहती। उसने इस तरह कहा जैसे मेरा प्रश्न बिल्कुल असंगत रह गया। मैं बापू के साथ गांव से आई हूँ, बापू को यहाँ थोड़ा काम है, उनका काम हो जाएगा तो हम लोग गांव चले जाएंगे। उसकी आंखों ने अभी लजाना नहीं सीखा था। उसके अंदर वही ताजगी थी जो नई बहार की कलियों में होती है। वो गांव से आई थी और गांव को चली जाएगी। वहां जाकर सरसों के पीले पीले फूलों से खेलेगी और मीठे नरम साग खाएगी। कोई आग के पास हीर गाएगा तो वो विभोर होकर सुनेगी, नहीं तो सरसराती हवा का संगीत ही सही, वो उसके रोम रोम को थपथपाकर सुला देगा। अचानक मैंने देखा कि बाल्टी भर चुकी और पानी इधर उधर बह रहा है और मैं पंप चलाए जा रहा हूं। अपनी अनमनस्कता और
पुष्पा के सौजन्य का बदला चुकाने के लिए मैंने बाल्टी उठाई और सारा पानी पुष्पा की बाल्टी में डाल दिया। ओए, मेरी बाल्टी छू गई। छू कैसे गई? मैंने लज्जा और अपमान महसूस करते हुए पूछा। पुष्पा ने मेरे छिपे हुए भाव को भांप लिया और क्षमा मांगने के ढंग से बोली, जी जी मैं अपनी बाल्टी मांझ कर लाई थी, आपकी बाल्टी मंजी हुई नहीं थी। सुनकर मेरी आत्मा फिर उदार हो गई। मैंने अपने आप को याद दिलाया कि बाल्टी को राख से मला जाए तब जाकर वो पवित्र होती है। फिर उसे गलीच फर्श पर रखकर उसमें पानी भरे या चबाए हुए दातून के ढेर पर। मेरी बाल्टी भी मंजी हुई है, मैंने आज सवेरे ही मांझी थी। मैंने झूठ बोला था। मैं बिना कारण के झूठ बोलता हूँ और दिन में कई कई बार झूठ बोलता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है और ये मुझे अच्छा लगता है। ये सच कह रहा हूँ, क्योंकि जो मुंह से झूठ नहीं बोलते वो मन से झूठ बोलते हैं, और जो मन से झूठ बोलते हैं वो मुझसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सच के दावेदार है। पुष्पा ने मुस्कुराकर सारा पानी बिखेर दिया और जमीन से मट्टी उखाड़कर बाल्टी मलने लगी। मैं भी अपनी बाल्टी में पानी भरने लगा। तभी दूर से उसे किसी ने पुकारा, पप्पी आई बापू, पानी नहीं भरा। नहीं बापू, जल्दी कर, सिर मुड़ी। मैंने देखा सामने के बरामदे में खड़ा एक बूढ़ा जाट सर पर पगड़ी लपेट रहा था। एक तो उसकी आवाज इतनी कर्कश थी और दूसरा उसकी सफेद दाढ़ी ऐसी नोकदार थी मानो वो उसी से मुर्गियां झटकता था। उसकी आंखों का रंग बता रहा था कि उसने रात में खूब शराब पी है, क्योंकि नशा अभी तक उसकी पुतलियों में तैर रहा था। उसने पगड़ी लपेट कर दाढ़ी पर हाथ फेरा और फिर आवाज दी, जल्दी कर लाड की बच्ची, नहीं तो तेरा छोटा सेकूं। मेरी बाल्टी आधी भरी थी। मैं जल्दी जल्दी पंप चलाने लगा। पुष्पा मेरी ओर देखकर 2 कौड़ियों का दाव फेंक कर मुस्कुराई, मानो उसकी मुस्कुराहट मुझसे कह रही हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता बापू की गालियां बेटी को नहीं लगाना। उसके बाद मैंने 2-3 बार फिर पुष्पा को देखा। न जाने क्यों उसे देखकर मुझे गहरे रंग के लाल मखमली फूल याद आ जाते, जिन्हें मैं बचपन में अपनी कोट पर लगाकर घुमा करता। 2-3 बार मैंने पुष्पा के बापू को भी देखा। दातुन करते, जूड़ी बांधते या गाली बकते। उस दिन मैं दफ्तर से जब लौटते वक्त लक्ष्य किया कि वो सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा उससे 2 कदम हटकर मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने चाल तेज की, वो भी तेज चलने लगा। मैंने चाल धीमे की, वो भी धीमे धीमे चलने लगा। मुझे ये कभी सहा नहीं कि कोई मेरे साथ साथ चले, क्योंकि मैं जिसके साथ चलता हूँ वो सदैव सोचता है कि मैं उसकी तरह चलूं और उसी की तरह सोचूं। मुझे खुशी होती है कोई मेरे साथ चले, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो मेरे साथ चलता है और अपनी तरह सोचता है। हाँ, किधर जा रहे हैं? पुष्पा के बापू ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कहा और मैंने इस अंदाज में कहा कि वो जान ले कि मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ और संध्या के समय पैदल चलना मुझे अच्छा लगता है। मॉडल टाउन। आप डॉक्टर गुरबख्श सिंह मदान को जानते हैं? वो हमारे गांव के हैं। शहर में आकर हमारा उन्हीं के घर डेरा होता है। पास आकर बोला, चलो हाँ चलते, 1 से 2 भले। हाँ। मैंने कहना तो चाहा कि उसका मेरे साथ चलने में भले लाभ हो, मगर मेरा उसके साथ चलने में कोई लाभ नहीं। मगर इसलिए नहीं कहा कि बाबा का जाट जोश में आकर मेरे सर का पंजाब न बना दे। आप यहाँ के हैं? अपना परिचय बढ़ाने के लिए उसने कहा। नहीं तो फिर जालंधर में कब से है? मैंने सोचा कि उसके सारे प्रश्नों का जवाब उसे एक साथ दे दिया जाए ताकि उसकी सारी जिज्ञासा शांत हो जाए। इसीलिए मैंने कहा मैं यहाँ 2 महीने से हूँ, सेक्रेटरीट में असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, वेतन 120 रुपए है, ऊपर ही आमदनी हो जाने की आशा है, शादी नहीं की, लड़की देख रहा हूँ, हर इतवार को अपने शरीर पर कड़वे तेल की मालिश करता हूँ, मुझे सब्जी में गोभी पसंद है, फलों में मैं आम पसंद करता हूँ, मेरी रोटी एक गढ़वाली पकाता है जिसकी उम्र 20 साल है। नहीं, उसकी लड़की की उम्र 40 साल है। उसकी लड़की की उम्र 20 साल है और उसकी उम्र 40 साल है। ये सब कहकर मैंने मन में कहा कि पूछता हूँ, अब क्या पूछता है? और उसने फिर भी पूछा, क्यों जी, घरवाली ने अपनी लड़की की शादी नहीं की? यह हद, मगर मैंने अपना धैर्य नहीं खोया। जाट के प्रश्न को स्वाभाविक समझकर मैंने स्वाभाविक सा उत्तर दिया कि
अच्छा जी विधवा है तो वो उसे दूसरी जगह बिठाएगा। मैं आधुनिक इतिहास का विद्यार्थी होता तो घरवाली से जरूर पूछ रखता कि वो अपनी लड़की को दूसरी जगह बिठाएगा या नहीं, मगर इतिहास में मेरी रुचि तैमूर लंग की लड़ाई तक ही सीमित रह गई, उसके आगे नहीं। अब चार्ट के प्रश्न का उत्तर देना भी आवश्यक था। मैंने देखा कि उसकी मूंछ के बाद लंगड़ाई ले रहे थे। अब रास्ता काटने की नियति से मैंने बोला कि उसकी देखभाल तो कर रहा है, आगे उसकी किस्मत देखने में अच्छी है। हाँ अच्छी है, स्वभाव की मीठी है। हाँ मीठी है, काम करती है, काम में थोड़ा सुस्त है, हाँ बात बहुत करती है। जवानी का जोश हो रगों में तो काम नहीं सुहाता। उसकी टिप्पणी का मजा लेने के लिए मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में भूखी बिल्ली की सी जलन दिखाई। उसके होठ बूढ़ी वासना की लाड़ में गीले हो रहे थे। मैंने उसे रंग में भंग डालने के लिए झुककर अपने जूते को झाड़ा और बोला, इन कच्ची सड़कों पर तो जूतों का कचूबर निकल जाता है सरदार जी। उसने मेरे अभिनय और शब्दों की ओर ध्यान ही नहीं दिया, अपने ही में खोया बोला, बाबूजी आज आपकी घरवाली से मुलाकात हो सकती है? क्यों? वासना का लाड़ चू चू कर जमीन पर जम चुका है और मनुष्य का आकार लेकर इधर उधर भटक रहा है। उसको देखकर मुझे ऐसा ही लगा, बाबूजी मुझे एक घरवाली की जरूरत है। मैं जमींदार हूँ, पास के गांव में मेरी 9 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन जिला करनाल में है। घरवाली मर गई है, एक जवान लड़की है, अगर वो चली जाएगी तो मेरा रखवाला कौन है? आप मेरा ये काम करा दीजिए सरकार। मैंने उसको देखा, मानो उसके शब्द कुछ और अर्थ कह रहे हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि बाबूजी मुझे औरत के गर्म मांस की जरूरत है, भले मैं बुरा हूं, बस मेरे अकेले के पास 12 एकड़ जमीन है। हड्डियों पर गर्म मांस नहीं रहा, मगर बूढ़ी हड्डियां आप भी गर्म मांस का चारा चाहती हैं। इनके गर्म मांस के चारे का इंतजाम करा दीजिए बाबूजी। अपना हाथ छुड़ाने के लिए मैंने उससे कहा कि सरदार जी, घरवाली अपनी लड़कियों का ब्याह पंजाबियों में नहीं करते, वो अपनी लड़की को किसी घरवाली के घर ही बिठाएगा। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा ढीला पड़ गया। उसकी मूंछ के बाद जो अब तक अंगड़ाई ले रहे थे वो शांत हो गए और ठंडी सांस लेकर बोला, कहीं कामयाबी नजर नहीं आती बाबूजी। लोग कहते हैं कि रिफ्यूजी कैंप में मिल जाएगी, मगर 1.25 साल से चक्कर लगा लगा कर हार गया हूं। डॉक्टर साहब ने एक पहाड़ी 400 रुपए में ठीक की थी, वो भी मेरी दाढ़ी देखकर मुंह कर गई। तो तुमको घर की देखभाल की जरूरत है ना, तो एक नौकर क्यों नहीं रख लेते? नौकर इतना काम नहीं दे सकता। जमींदार का घर है, 4 आने वाले 4 जाने वाले, इतना कुछ तो एक लड़की ही देख सकती है। तो तुम चाहते हो कि एक जवान लड़की आए, तुम्हारे गुर्दे भी दुरुस्त करे और तुम्हारी गाय भैंस का दूध भी दुहे। वो क्यों तुम्हें की सकता? हम क्या मर गए हैं? उठने बैठ के आराम करे, ये देखने के लिए कि वो सौदे में अपने आप को कहां तक ढाल सकता है। मैंने उपदेश के रूप में एक लाइन बोली कि इस उम्र में तो वही आ सकती है सरदार जी जो कई घरों से निकाली गई, जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो। ऐसे को घर में बिठाएंगे? मैंने देखा कि उसकी मूंछ के बाद फिर अंगड़ाई लेने लगा। मेरे पास आकर बोला, जरूर आपके पास कोई है मालिक। मालिक, मुझे यकीन नहीं हुआ है कि मेरे शब्दों का ये अर्थ भी निकल सकता है। मैंने थोड़ा भद्दा पड़कर कहा कि मेरा ये मतलब नहीं सरदार जी कि मेरे पास कोई है, मैं बस बात करने के लिए बात कर रहा था। नहीं मालिक, मेरा एक काम करा दीजिए, 400-500 रुपए आपके वार दूंगा सरकार। मेरी पगड़ी अपने पैरों में समझिए सरकार, मेरा एक काम करा दीजिए। और मैंने उसको देखा, उसकी भौहें जो सफेद हो रही थी, गालों का मांस लटक रहा था और सारे दांत टूट चुके थे, और जो दांत शेष थे उसकी जड़ों में लहू रिसा रहा था। और वो मुझसे विश्वास मांग रहा था कि मैं कह दूं कि हाँ है एक औरत जो अपनी जवानी रान कर उसे खिला सकती है, जो उसका चारा बन सकते हैं, क्योंकि वो जमींदार है, उसके घर एक गाय और भैंस है, उसकी गांठ में जितना पैसा है उसकी हड्डियों में उतना जोर नहीं। बोलिए ना बाबूजी। अरे सरदार जी, मेरे पास कोई नहीं है और मैं ना किसी को जानता हूं।
मॉडल टाउन सामने था। पुष्पा अभी भी बापू का इंतजार कर रही थी। न जाने क्यों पुष्पा को देखकर मुझे मखमली लाल फूल याद आ गए। मैंने जाट से पूछा, सरदार जी अभी कुछ दिन और है ना आप हमारे पड़ोसी? नहीं बाबूजी, अब हम कल ही चले जाएंगे। अब यहाँ किसके भरोसे रहें? वहां जाकर अपने बदले में कोई लड़की देखेंगे। बदले में? मैंने आश्चर्य से पूछा। हमारे यहाँ रिवाज है बाबूजी, अगर बराबर का रिश्ता हो तो आपस में दो घर लड़कियां बदल लेते हैं। जाकर मैं वहां अपने जैसा ही कोई घर देखूंगा। पुष्पा अभी भी बापू की प्रतीक्षा कर रही थी। जो गाली पुष्पा को बापू देता है वो गाली उसे नहीं लगती, मगर जो गाली उसे नहीं दे रहा वो गाली उसे लग रही है। वालों को पता था कि अभी बस के आने में बहुत देर है, फिर भी पल्ले से पसीना पोंछते हुए उसकी नजर बार बार सड़क की तरफ उड़ जाती थी। आसपास कोई भी पेड़ नहीं था और अभी खेतों की गुड़ाई की गई थी तो जमीन पर पूरी तरह मटियालापन था। उस नकोदर रोड का पिघला सुरमई रंग उस मटियालेपन से जरा अलग था। उसके पास ही एक पानी का खोखा था जिसके पास एक अधेड़ सा व्यक्ति ऊँग रहा था। उसे टेक लगाए एक भिखमंगा बैठा हुआ था जिसकी नजर बालों के हाथों की तरफ थी। बालों अपने हाथ में आंचल में वो रोटी छुपाए रखी थी जो अपने पति के लिए लेके आई थी। उसका पति सुच्चा सिंह ड्राइवर, मगर आज वो रोटी लाने में देर कर दी थी जिसकी वजह से सुच्चा सिंह की बस नकोदर के लिए चली गई थी। वो ये जानती थी कि सुच्चा सिंह को इस बात का बहुत गुस्सा आया होगा। अब वो इंतजार कर रही थी कि नकोदर से बस होकर आ जाए तो वो उसे रोटी दे दे, पर वो क्या करती? उसे रात की रोटी भी देनी थी तो वो इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो सोचती रही कि मैं रोज 1 बजे चलती हूँ, 2 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाती हूँ धूप में और इंतजार करती हूँ कि बस आ जाए तो मैं उसे रोटी दे दूँ। किसी दिन उसको जब देर हो जाती तो सुच्चा सिंह किसी ना किसी बहाने से बस रोके रखता और 2-4 मिनट बाद वो जब आ जाती तो उससे रोटी ले लेता, पर उसे डांट देता। मैं सरकारी नौकर हूँ, तेरे बाप का नौकर नहीं, यहाँ तेरा इंतजार कर रहा। वो चुपचाप उसकी डांट सुन लेती और उसे रोटी दे देती। मगर आज वो 2-4 मिनट की नहीं, 2-2.5 घंटे के देरी से आई थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं किस तरह उसको बताऊं कि मैं किस वजह से देर हो चुकी हूँ, मुझे उसको रात की रोटी भी देनी है। वो बार बार उस घटना को मन ही मन दोहरा रही थी। वो जानना चाहती थी कि वो किस तरह उसे वो बात कहे कि वो सब कुछ जान भी ले और खामखा तैश में भी ना आए। सुच्चा सिंह का गुस्सा बहुत खराब था। और साथ ही जंगी को अगर कुछ उल्टा सीधा कहा जाए तो बगैर गंडासे के बात नहीं करता था। जंगी उनके गांव में एक पगला सरफिरा जिससे लोग दूर दूर रहते थे। अभी पिछले साल उसने एक साथ के गांव की मेहरी को भगा कर ले गया और ना जाने कहां ले जाकर बेच आया। लोग उससे दूर दूर रहते थे। इतना सब कुछ जानते हुए भी वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है कि 14 साल की जिंदा को आती देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करे। जिंदा अकेली खेत से चल के आ रही थी और उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बात यह है कि जंगी जो था वो तो था ही ऐसा, पर जिंदा चल के आ रही थी उसके खेत में से, इसलिए शायद गुस्सा हो गया होगा। पर हम नहीं जानते एक्चुअली क्या हुआ था। जब जिंदा वहां पे आई तो वो आटा गूंद रही थी और इंतजार कर रही थी कि वो उपले लेकर आ जाए तो वो जल्दी से रोटियां बना ले जिससे वो बस के किनारे पहुंच जाए, है ना। अब वो आटा गूंद रही थी। उसने जिंदा को देखा, उसके हाथ खाली थे और उसका चेहरा पीला हो रहा था। वो उठ खड़ी हुई। क्या बात है जिंदा, ऐसे क्यों हो रही है? वो कुछ नहीं बोली। उसके पास आई और उसके बाह में सिर डालकर रोने लगी। क्या हुआ है जिंदा, ऐसे क्यों हो रही है? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? मुझे उपले लेने मत भेजा कर। आज वो जंगी मुझसे कहता था। और गला रूंध जाने की वजह से वो आगे कुछ नहीं कह सकी। क्या कहता था जंगी तुझसे? बता, बोल। वो
जंगी मुझसे कहता था, चल जिंदा अंदर चलकर शरबत पी ले। आज तू बहुत सोहनी लग रही है। माँ कमजात, अरे मुझे को अपनी माँ रंडी सोनी नहीं लगती? तू आने दे सुच्चा सिंह को। निपुते तेरे घर में लड़की होती ना तो इससे बड़ी होती। तूने क्या कहा? मैंने कहा मुझे प्यास नहीं है और मैं बाहर छुड़ाने लगी तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। कहा कि चाचा का शरबत पी ले, याद रखेगी, और मेरी बाह पकड़कर खींचने लगा। हरामी, तू आने दे सुच्चा सिंह को। इसकी बोटी बोटी ना नुचवाऊं ना तो कहना। मैंने किसी तरह अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश करी तो मेरे हाथ से उपले गिर गए। मैंने उपले वहीं पड़े रहने दिए और अपनी बाह छुड़ाकर निकल आई तो पीछे से यही कहता हुआ बोला, अरे बेटी तू तो बुरा मान गई। अरे मैं तो हंसी कर रहा था तेरे साथ। अरे देख तेरे उपले पड़े हैं, वो उठाकर ले जा। हाँ नहीं मानती? चल कोई बात नहीं, मैं आज तेरे घर आकर तेरी बहन से शिकायत करूंगा कि जिंदा बहुत गुस्ताख हो गई है। कहा नहीं मानती, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं सीधे सीधे चली गई। इसके बाद उपले लाकर खाना बनाने में उसे इतनी देर हो गई थी, जब तक वो आलू की तरकारी, आम का अचार रोटी में रखकर उसे खद्दर से के साथ बांध देती, तब तक 2 कप के बज चुके थे। और वो ये जानती थी कि वो सुच्चा सिंह को 2 बजे की रोटी नहीं दे पाएगी। फिर वो रोटी साइड में रखकर घर के बाकी काम वाम करने लगी। जब सारे काम खत्म हो गए तो उससे ये नहीं हुआ कि वो इंतजार करे और बस के आने के अंदाजे से घर से निकले। वो बेचैनी में घर से चल दी थी और वो सोच रही थी कि मैं सुच्चा सिंह को क्या बताऊं, कैसे बताऊं। इतने में जिंदा ने पूछा, बहन तू कब तक आएगी? मुझे अकेले डर लगेगा। डरने की क्या बात है? उसने दिखावटी साहस के साथ बोला, मैं सांझ तक आ जाऊंगी, ठीक है? तू एक काम करना, अंदर से सांकल लगा लेना, हाँ? और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले नाम पूछ लेना, ठीक है? हाँ। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, सुन, अगर जंगी आ जाए और मेरे लिए पूछे कहाँ गई है तो कहना कि सुच्चा सिंह को बुलाने गई है, ठीक है? समझ गई? नहीं, तुम उसे कुछ मत कहना, चुप रहना, अंदर से बिल्कुल कोई जवाब मत देना। उसे झूठा दिलासा देकर वो सड़क के किनारे आकर रुक तो गई थी, पर वो ये जानती थी कि जिंदा अकेली घर पर डर रही होगी और वो चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी बस आ जाए जिससे वो रोटी दे दे और वापस घर लौट जाए। उसने पास बैठे भिखमंगे से पूछा, वीरा 2 बजे वाली बस को गए कितनी देर हुई है? कहीं बसें आती हैं, कहीं जाती है, यहाँ कौन टाइम का हिसाब है भाई, अल्लाह मालिक है। आलो चुप रही, क्या कहते? अभी कुछ देर पहले वो नकोदर में एक बस को जाती हुई देखी। बस धूल उड़ा रही थी। उसे जैसे लग रहा था कि धूल के उस तरफ एक अलग दुनिया है और इस तरफ एक अलग दुनिया है। बसें एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आती है। वो दुनिया कैसी होगी? जहाँ पर बड़े बड़े दुकान हैं, बाजार हैं, जहाँ पर एक ड्राइवर की 3/4 कमाई हर महीने खर्च हो जाती है। देवी ने उससे कहा था कि नकोदर में उसकी एक रखेल है। उसका बहुत मन करता था कि वो एक बार उस औरत से मिले। उसने एक बार सुच्चा सिंह से कहा भी था, सुच्चा सिंह मुझे नकोदर घुमा ले यार। अरे पर निकल रहे हैं, हाँ? सुच्चा सिंह वो मर्द नहीं है जो औरत की बाह पकड़कर उसके साथ सड़कों पर घुमा फिरे। अगर घूमने का इतना ही शौक है तो दूसरा खत्म कर ले, मेरी तरफ से तुझे खुली छूट है। उस दिन के बाद से आज तक उसने ये बात वापस कभी नहीं निकाली थी। वो ये जानती थी कि सुच्चा सिंह जैसा भी हो वो उससे प्यार तो करता था, हाँ? वो उसको मारता था, पीटता था, मगर हर महीने जब भी उसको तनख्वाह मिलती थी तो वो 20 रुपए उसको लाकर दे तो देता था। सुच्चा सिंह उसको अपनी घरवाली होने का एहसास दिलाता था। आप समझे नहीं? ये सब बात सोचते हुए उसके पैर दुखने लगे थे और उसने देखा दूर से एक बस आ रही है। उसको समझ गया था कि यह बस सुच्चा सिंह की नहीं है, फिर भी उसकी आंखें ना जाने क्यों उस बस पे टिकी रही।
वो बस उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक गबरू जवान नीचे उतरा, उसने प्याज और शलगम का गट्ठर रखा। वीरा, नकोदर से अगली बस कितनी देर में आएगी? घंटे घंटे में बस चलती है माई, तुझे कहाँ जाना है? वीरा, जाना नहीं है, इंतजार करना है। वो सुच्चा सिंह है ना, मेरा घरवाला है, उसे रोटी देनी है। ओ सुच्चा सिंह, तू उसे जानता है? अरे उसे नकोदर में कौन नहीं जानता। उसको उसका कहने का ढंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सुच्चा सिंह के बारे में जो बातें जानती थी, उन्हें उसे दूसरों के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो चुप रही। फिर उस आदमी ने दोबारा कहा, बड़ा जालिम है जो तुझे इस तरह इंतजार करवाता है। चल वीरा, अपने रास्ते चल। वो मुझसे क्यों इंतजार करवाएगा? आज तो मुझे ही देर हो गई थी। वो तो बेचारा सुबह का भूखा बैठा होगा। सुच्चा सिंह भूखा। और वो हंसता हुआ खेतों की पगडंडियों की तरफ चला गया। उसके बाद बालो वापस उसी जगह पर जाकर खड़ी हो गई, जैसे वो बनी ही इसीलिए थी कि वो वहां पर खड़ी रहे और इंतजार करे। कुछ देर बाद जब उसकी पैरों की एड़ियां दुखने लगी तो उसने देखा और एक बस आ रही है। इस बार वो अपने रोटी का कपड़ा ठीक करने लगी। उसका दिल धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि सुच्चा सिंह को कढ़ा प्रसाद का कितना शौक है, वो उसके लिए थोड़ा कढ़ा प्रसाद बनाकर क्यों नहीं लाए। फिर उसे लगा कल गुरु पर्व है, कल वो जरूर उसके लिए कढ़ा प्रसाद बनाकर लाएगी। धड़कते हुए दिल के साथ उसने देखा कि सुच्चा सिंह उस पर बहुत नाराज है। फिर भी उसने हिम्मत की और अपना रोटी वाला हाथ ऊपर उठा लिया। बस उसके सामने ना रुककर प्याऊ के आगे जाकर रुकी। वो तेजी से चलकर वहां पहुंची। सुच्चा सिंह, हट जा यहाँ से। सुच्चा सिंह, देख आज एक खास वजह हो गई थी, तू नीचे उतरकर मेरी बात तो सुन ले। हट जा यहाँ से। सुच्चा सिंह, मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ी हूं, तू कम से कम नीचे उतर के मेरी बात तो सुन ले। अच्छा ठीक है, मत सुन। तू मंगलवार को घर आएगा ना, तो मैं तुझे सारी बात बता दूंगी। अभी रोटी ले ले। मंगलवार को घर आएगा तेरा? और एक मोटी सी गाली देकर उसने बस स्टार्ट कर दी और वो चला गया। बालों ने प्याऊ के तख्ते के पीछे से पानी उठाया, अपने मुंह पर थोड़ा सा पानी मार लिया, आंचल से कपड़ा पोंछते हुए वापस उसी जगह पर जाकर खड़ी हो। प्याऊ वाला प्याऊ बंद कर रहा था। आसमान का रंग अब सुनहरा हो रहा था। चिड़ियाएं बहुत सुंदर लग रही थी। पास के किसी खेत में एक गबरू नौजवान महिया गा रहा था। महिया की वो लय उसके रग रग में बसी हुई थी। बचपन में जो ग्रहट के पानी के नीचे गर्मियों की शाम को वो नहा नहा कर नाचती थी, तब भी यही लय, महिया की लय हवा में समाई रहती थी। बचपन के साथ उसका एक गहरा संबंध था, पर वो जैसी जैसी बड़ी होती गई उसका संबंध और गहरा होता गया। उसके गांव के पास एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक युवक बड़ी लोच के साथ गले पर हाथ रखकर महिया गाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तू अब बड़ी हो गई है, पीपल के पास ऐसी मत खड़ी रहा कर, अच्छा नहीं लगता। उस दिन के बाद उसकी सगाई की चर्चा शुरू होने लगी। वो सोचती थी कि मेरा वर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि गाने की कड़ियां सुनकर सामने आता है। और फिर जिस दिन रात को सुच्चा सिंह ने सुहागरात को उसका घूंघट उठाया, तो उसने देखा कि वो बिल्कुल वैसा ही वर पा गई है। कान्हा कन्हैया। सुच्चा सिंह ने उसकी थोड़ी ऊंची की तो ना जाने कितनी लहरें उसके सिर से उठकर उसके पैरों के नाखूनों में जा समाई। सुच्चा सिंह ने उसको बाहों में बहते हुए कहा, हीरे की कनी, हीरे की कनी। उसका मन हुआ कि वो कह दे, ये हीरे की कनी तेरे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है, मगर वो शर्मा कर कुछ नहीं बोला। इतने में प्याऊ वाला जा रहा था, वो बोला, माई क्या कर रही है? अंधेरा हो रहा है, घर जा। वीरा, जलंधर से जो बस आएगी वो 8-9 बजे तक आ जाएगी ना। उसकी रोटी देनी है। अरे उसे रोटी लेनी होती तो ले ना लेता, उसका तो दिमाग ऐसे ही हवा में भरा रहता है। मेरा मर्द कभी कभी नाराज हो ही जाता है, इसमें ऐसी भी क्या बात है। ठीक है,
मेरी मर्जी, बस 9 के पहले नहीं आएगी। जब भी आए, ब्याह वाला वहां से चला गया। जो निर्णय वो अब तक नहीं कर पाई थी, वो ब्याह वाले से बात करके अपने आप हो गया था। यही कि जलंधर से बस के आने तक उसे यहीं खड़ी रहकर इंतजार करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जिंदा थोड़ा डरेगी, इतना ही तो है ना। देखिए, जंगी की अब उसको दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी। सुच्चा सिंह को अगर पता चल गया कि जंगी ने क्या किया है, तो उसके केश को पकड़कर सारे गांव में नहीं घसीट देगा। वो थक चुकी थी, तो सोच रही थी कि नहीं, सुच्चा सिंह को ये सब बताना ठीक नहीं है। पहले ही वो घर के झंझटों से डरता है, और अगर उसने घर आना बंद कर दिया तो आज सुबह ही वो कह रहा था कि मंगलवार को घर नहीं आएगा। उसका गुस्सा अच्छा नहीं है। उसने सचमुच घर आना बंद कर दिया तो नहीं, इस घर की परेशानियां मैं देख लूंगी, सुच्चा सिंह खुश रहे, बस। वो थकी जा रही थी। ब्याह के तख्ते पर जाके वो बैठ गई। अंधेरा छाने लगा था। अब जो आखिरी बस जलंधर से आने वाली थी, वो सुच्चा सिंह की बस थी। वो बार बार उस तरफ देख रही थी। उसकी आंखें मूंदी जा रही थी। उसे जैसे लग रहा था कि बस अभी आएगी, अभी आएगी, पर बस नहीं आ रही थी। 2 बार वो झटक कर उठी भी, जैसे कि बस आ रही है, पर बत्तियां ना दिखाई देने से वापस सो गई। फिर उसे लगने लगा कि वो घर के अंदर बैठी हुई है और कोई जोर जोर से किवाड़ खटखटा रहा है। रहट के बैल गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। जो जिंदा है वो सहम कर बैठी हुई है। उसके पैरों की एड़ियां फटी जा रही है। प्याऊ के तख्ते में पानी नहीं है। वो गिलास डाल डाल कर पानी निकालने की कोशिश कर रही है, पर पानी नहीं मिल रहा। एक नौजवान बैलों की घंटियों के अनुसार एक गीत गा रहा है। वो गीत उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी पैरों की एड़ियां फटी जा रही है। उसका पैर दर्द कर रहा है। वो तेल लगाने की कोशिश करती जा रही है। वो तेल लगाने की कोशिश करती जा रही है, पर तेल सूखता जा रहा है। तेल सूखता जा रहा है। जैसे जैसे वो तेल लगाती जाती है, तेल सूखता जाता है। इतने में उसके कंधे पे एक हाथ गिरा। सुच्चा सिंह, उसने आंखों को मलते हुए कहा। सुच्चा सिंह उसके बाजू आकर बैठ गए। तो इतने देर से यहीं बैठी है, घर नहीं गई? क्या कहती? तुझे रोटी जो देनी थी, तुझे आए कितनी देर हुई? अभी बस खड़ी की है। इस बार बस प्याऊ के ठीक सामने खड़ी थी। पागल है क्या कर? तू जो कह गया था कि घर नहीं आएगा, और उसने आंखें बंद करके अपने आंसुओं को उमड़ देने से रोक लिया। ला रोटी दे। और पीठ पर हाथ रख के उसको बस के पास तक ले आया। वो बस में चढ़ गया। वो डरते डरते उससे पूछी, सुच्चा सिंह, तू मंगलवार को घर आएगा ना? हाँ आऊंगा। शहर से कुछ लाना हो तो बता दे। नहीं, कुछ नहीं लाना। ठीक है, अब घर जा। 1 मील बाट है, जिंदा डर रही होगी। सुच्चा सिंह, कल गुरु पर्व है। कल मैं तेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाकर लाऊंगी। हाँ। वो बस धूल उड़ाकर फिर से नकोदर की तरफ चली गई। उस धूल में बालों घिरी रही। जब धूल साफ हुई तो वो आंचल से अपनी आंखें पोंछने लगी, और वो जब तक बस को देखती रही तब तक उसकी लाल बत्ती उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई। భర్త రాము పనిపాట లేకుండా తోటలో కూర్చునడం చూసిన అంజలికి చిర్రెత్తుకొచ్చింది. భర్తను పిలిచి, ఏమయ్యా, అలా పనిపాట లేకుండా తోటలో కూకొని పగటి కలలు కనే బదులు ఆ పట్టణానికి పోయి వారానికి సరిపడే సరుకులు తీసుకురాపో అని చెప్పింది. పళ్ళు కొరుక్కుంటూ చేసేదేమీ లేక రాము పట్టణానికి బయలుదేరాడు. తోటి గ్రామీణికుల వల్లే అతను కష్టజీవి కాదు. అడ్డదారుల్లో డబ్బు సంపాదించడం ఎలా అంటూ రోజంతా మల్లగుల్లాలు పడుతూ ఉండేవాడు. పట్టణానికి వెళ్తుండగా ఊరి చివర రాము ఒక నల్లాడవలసి వచ్చింది.
ఏటికి అవతల గట్టుపైన వరుసగా చెట్లు దట్టంగా పెరిగాయి. చెట్ల వరుసలో నడుస్తున్న రాముకి ఒక పెద్ద చింత చెట్టు కనపడింది. ఆ చింత చెట్టును చూడగానే అతని మనసులో పలు ఆలోచనలు చేరాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం పట్టణంలో తనతో కలప వ్యాపారి మాట్లాడుతూ తనకు అత్యవసరంగా చింతకలప కావాలని మంచి ధర చెల్లిస్తానని చెప్పాడు. ఆ మాటలు గుర్తుకు రాగానే అతనికి మెరుపులా ఒక ఆలోచన తట్టింది. తాను పట్టణం వెళ్ళడం మర్చిపోయి అక్కడే కూకొని పథకం పడడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ చింత చెట్టు ఏటికి సమీపంలో గట్టుపై ఉంది. దీన్ని నరికి ముక్కలు చేసి పట్టణంకి తీసుకెళ్లి గిడ్డంకిలు అమ్ముతే భారీగానే డబ్బు ఉండవచ్చు అని అనుకున్నాడు. ఈ విషయంలో తన మిత్రుడు గోపి సహాయం తీసుకోవాలనుకున్నాడు. తాను చేసే తప్పు పనులన్నింటిలో గోపి తనకు సహాయం ఉండేవాడు. చెట్లు కుట్టడంలో అనుభవం ఉన్న కాలయ్య సహాయం తీసుకోవాలనుకున్నాడు. రాబోయే పున్నమి రాత్రి కాలయ్య చెట్టును కొడతాడు. గోపి ఎడ్ల పనివాడిని తీసుకొని వస్తాడు. తెల్లారిలోపు చెట్టును కొట్టి ముక్కలు చేసి పట్టణానికి పోయి అమ్మేస్తాడు. వచ్చిన డబ్బుతో ఈ పనిలో సహాయపడిన వారికి తల కొంత ఇచ్చి మిగిలిన సొమ్ముతో నేను ఇంటికి పోతాను అని ఇలా ఆలోచించి భుజాలు ఎగరేశాడు రాము. అనంతరం పట్టణానికి వెళ్ళి కలప వ్యాపారిని కలిసి తాను తీసుకొచ్చే కలప కోసం ఇచ్చి ధర మాట్లాడుకున్నాడు. తర్వాత ఊరికి వెళ్ళిన రాము తన మిత్రుడు గోపిని, కాలయ్యని, ఇతరులను కలిసి తాను వేసిన పథకం గురించి వాళ్ళందరికీ వివరించి చెప్పారు. వాళ్ళందరూ కూకొని చేయవలసిన పనిని ఖరారు చేసుకున్నారు. రాము మనసులో ఉత్సాహం పొంగి పొరులుతుంది. ఎందుకంటే చెట్టు కొట్టేసి పోతున్నాం ఈ రోజే. మరి వాతావరణం కూడా అనుకూలంగా ఉండడంతో వాళ్ళందరూ చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. సాయంకాలం వేళకి కారు మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి. చీకటి పడే వేళకి మెరుపులు మెరిసి వర్షం కురవడం మొదలైంది. భోజనం ముగించుకున్న రాము పథకం ప్రకారం చింత చెట్టు వైపు బయలుదేరాడు. కాలయ్య చెట్టు కాడనే నన్ను కలుసుకుంటాడు. నా మిత్రుడు గోపి, పనివాడు అర్ధరాత్రి నేరుగా చెట్టుకానికే వస్తారు. ఇలా ఆలోచించుకుంటూ వర్షాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా రాము చింత చెట్టు వైపు బయలుదేరాడు. నది చేరుకున్న రాముకి తన కనుచూపు మేరలో ఎవ్వరూ కనపడలేదు. రాము పెద్దగా నిట్టూర్చాడు. ఎందుకంటే తాను చేయబోయే పని గురించి ఎవరైనా చూసి ఊరి పెద్దకు చెప్తే తను పెద్ద చిక్కులో పడతాడు. మరి వర్షం రాము ముఖాన్ని ఈడ్చి కొడుతుంది. అయినా రాము పట్టించుకోకుండా నది దాటడం మొదలుపెట్టాడు. మోకాడి లోతు వరకు నీళ్లు పారుతున్నాయి. సరిగ్గా నది మధ్యలోకి రాగానే అతనికి ఒక పెద్ద శబ్దం వినిపించింది. ఎడమ వైపు తిరిగి చూశాడు. దేవుడా, అది అడవి ప్రాంతం నది. ఎగువన వర్షం పడిందంటే నదికి వరద ముంచెత్తుకొస్తుంది. ఈ విషయం తెలుసుకోగానే రాము వణికిపోయాడు. ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కోసం గట్టుకు వైపు పరుగుతీశాడు. గట్టుకు ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉన్న రాము వరదలో చిక్కుకున్నాడు. వరద ఒక్కసారిగా రాముని ఎత్తి కుదేసింది. ఉన్నట్టుండి దూలం వంటి వస్తువుపై పడ్డాడు. రెండు చేతులతో గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. తర్వాత తనకు అర్థమైంది తను ఒక చెట్టు కొమ్మని పట్టుకున్నాడు. మరి వరద నీటిలో కొట్టుకోపోకుండా తనను కాపాడింది ఆ చెట్టు కొమ్మే. మరి చిన్నగా చెట్టు ఎక్కి కూర్చున్నాడు. తన చుట్టుపక్కల అంతా చూశాడు. తన కనుచూపు మేరలో ఎవరు కనపడలేదు. తన మిత్రుడు గోపి, కాలయ్య, పనివాళ్ళు తెలివిగా ఉండి గట్టు అవతలే ఉన్నారని తాను గ్రహించాడు. ఇక తెల్లారే వరకు తన చెట్టునే ఉండాలి. చేసేదేమీ లేదు. కాసేపు అయ్యాక ఒక శరీరం వరదలో కొట్టుకురావడం చూశాడు. అతను ఒక పిల్లవాడు. ఒక్కసారిగా రాము ఆ పిల్లవాడిని చెట్టుపైకి లాక్కున్నాడు. తర్వాత ప్రాణంతో తేలియాడుతున్న కొన్ని మేకలు కనిపించాయి. రాము వాటిని కూడా కాపాడాడు. అతడు ఒక గొర్రెల కాపరి. నది పక్కన ఉన్న తన గుడిసె వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయింది. మరి కాస్త వరద ఎక్కువ వచ్చుంటే చెట్టు సైతం వరదలో కొట్టుకుపోయేది. ఇక రాము, ఆ గొర్రెల కాపరి, మేకలు రాత్రంతా చెట్టు మీదే ఉన్నాయి. కొంచెం సేపు అయినాక వర్షం తగ్గిపోయింది. వరద కూడా తగ్గుముఖపడింది.
తర్వాత తెల్లారిపోయింది. రాము తన చుట్టుపక్కల గమనించాడు. ఆశ్చర్యం, తాను కొట్టివేయాలనుకున్న చెట్టు పైనే ఉన్నాడు. తాను ఆ చెట్టుని తెగ నరికి డబ్బు కోసం తెగ నమ్మాలనుకున్నాడు రాము. కానీ ప్రతిగా ఆ చెట్టు తనకి ఏమిచ్చింది? ఘోరమైన ప్రమాదం నుండి తనను కాల్చి కాపాడింది, తనకు నీడనిచ్చింది. రాము కడుగుల నుండి కన్నీళ్ళు కారు. సహసిద్ధంగానే తను మూర్ఖుడు, సోమరి. కానీ ఈరోజు తన ఒక అబ్బాయి ప్రాణాలని, కొన్ని మేకల్ని కాపాడగలిగింది. నిజంగా ఇది తన జీవితంలో ఎన్నడూ చేరనటువంటి చాలా గొప్ప పని. ఇది తలుచుకోగానే రామ్ మనసు తేలికపడింది. సాయం చేసిన చింత చెట్టు ప్రభావంతో తాను కూడా మంచి మనిషిలా మారిపోయాడు. చింత చెట్టుని కౌగిలించుకొని కృతజ్ఞతలు. ఇన్నాళ్ళు పశువులా వ్యవహరించాడు, నన్ను మనిషిగా మార్చాడు. ఉన్నట్టుండి రాముకు మనుషుల స్వరాలు వినిపించాయి. తిరిగి చూశాడు. తన భార్య అంజలి, కొంతమంది గ్రామస్తులు తన వైపు పరిగెత్తుకు రావడం చూశాడు. రాత్రంతా రాము ఇంటికి రాకపోవడంతో అంజలి కలవరపడిపోయింది. కొంతమంది గ్రామస్తులను తీసుకొని తనను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది. తన భర్త క్షేమంగా ఉన్నాడని తెలుసుకున్న అంజలి చాలా సంతోషపడింది. రాము రాత్రంతా తను ఎలాంటి ఘోరమైన విపత్తు నుండి బయటపడ్డాడో, ఎలా తను ప్రాణాలతో పోరాడాడో వాళ్ళందరికీ వివరించి చెప్పాడు. వరద ప్రమాదం నుండి బ్రతికి బయటపడమే చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పాడు. అప్పుడు భార్య అంజలి అంది, అవును, నువ్వు ఆ భవానీ మాత దయ వల్లే బ్రతికి బయటపడ్డావు, పద మనం ఆ తల్లికి మొక్కుకుందాము అన్నది. అప్పుడు రాము, వద్దు అంజలి, ఈ దేవతే నన్ను కాపాడింది అని చింత చెట్టు వైపు చూపించింది. ఇది సజీవ రూపంలో ఉన్న దేవుడు. నేను ఈరోజు బ్రతికి బట్టకట్టడానికి ఎవరికైనా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాల్సి వస్తే అది ఈ హరిత దేవునికే చెప్పుకోవాలి. ఇప్పటి నుండి నేను ప్రమాణం చేస్తున్నాను, ఇప్పటి నుండి నేను ఎప్పటికీ పచ్చనాకు చెట్లను పడగొట్టను. అలాగే ఇతరులు ఎవరైనా సరే చెట్లని నరకడాన్ని నేను అడ్డుకుంటాను అని చెప్పి రాము చింత చెట్టు ముందు మోకరిల్లి ప్రార్థించాడు. तो ये था कथाकथन भाग 2। अब मैं अपने सभी परफॉर्मेंस को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। अमन, Someone. राजीव, On lights we have Amjad, on camera we have Suryan. And with thanks, backstage Amardeep, Daniel, Pranay, Abhishek, and with thanks our HOD, Rajiv Alichetti sir and Naushad sir, and this Katha Kathan part 1 and part 2 under the guidance of Kanayalal Kelkar. अमजद, सूर्यांश, अमरदीप। जाओ आप लोग की चले जाओ। आदित्य, माफ कीजिएगा। नीरज, रॉबर्ट। Well done, all of you. Good. दादा भी जाओ। Good, so good.